Assalamualaikum students. Today we will talk about depreciation accounting. This is lecture number 8. We are discussing methods of depreciation. In this video we will talk about sum of year digit method. You must watch first 7 lectures before proceeding with this lecture number 8. Let's begin. Rahmat Associates purchased a vehicle. This is the fixed asset which they are purchasing for rupees 3 lakh. On January 1, 2018 they had purchased this asset. The salvage value of the vehicle is assumed to be rupees 1 lakh and estimated life is 5 years. Rahmat closes his books of accounts at December 31 each year. You are required to compute depreciation expense for the year 2018, 2019 and 2020 by using sum of year digit method. Record adjusting and closing entry as well and prepare partial balance sheet for each year. For these 3 years you have to show in the partial balance sheet the value of vehicle and its allowance for depreciation. So let's begin. Under sum of year digit method we use this formula. The annual depreciation is calculated by subtracting salvage value from the cost of asset. Whatever answer we get, we multiply this with a fraction. How will this fraction be calculated? Remaining life upon sum of years. What this sum of years means, if the life is 5 years, the remaining years next year will be 4, then remaining years will be 3, then again next year it will be 2, then it will be 1. So we will find the sum of these years, that is 15. We can calculate this sum of year using a formula as well, that is n plus 1 upon 2, but this is the actual concept which you need to discuss to find out sum of years. So this 15, or you can say the sum of years, will always be the denominator of this fraction. And on the numerator we will be writing the remaining life. पहला साल मशीन का होगा तो जितनी लाइफ है वही रिमेनिंग होगी. नेक्स्ट ईयर आएगा तो रिमेनिंग लाइफ में हम 4 यूज़ करेंगे. उससे नेक्स्ट ईयर आएगा तो रिमेनिंग लाइफ में 3 यूज़ करेंगे. और डिनोमिनेटर में हर साल हम 15 एज अ फ्रैक्शन यूज़ करेंगे. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस विल बी कैलकुलेटेड कॉस्ट माइनस salvage value multiply by this fraction, and the fraction for first year will be 5 upon 15. For next year it will be 4 upon 15, for next year it will be 3 upon 15 and so on. सबसे पहले हम पहले साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं. कॉस्ट में से साल्वेज वैल्यू माइनस करें, जो आंसर आए उसको मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 15 करें, एंड दिस विल बी द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2018. प्रोसीड टू द नेक्स्ट ईयर. रिमेंबर द फॉर्मूला. cost minus depreciation, cost minus salvage value multiplied by fraction, and this fraction will now be 4 upon 15. As I told you, in sum of year digit method remaining life will come here. हर साल एक माइनस होता जाएगा और हमारे पास बची हुई लाइफ आएगी 2018 के बाद 2017 में एक साल मशीन की लाइफ, व्हीकल की लाइफ को गुजर चुका है, तो 4 विल बी आर रिमेनिंग लाइफ. 4 अपॉन 15 करें, इस ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया. फिर हम नेक्स्ट ईयर देख रहे हैं 2020 में. कॉस्ट माइनस salvage value multiplied by fraction, that is 3 upon 15. Again we had calculated the depreciation expense using the same formula. तीनों सालों की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई. 2018, 2019, 2020 तीनों सालों का डेप्रिसिएशन हमने सम ऑफ ईयर डिजिट से कैलकुलेट कर लिया. इसी की अब जनरल एडजस्टिंग एंट्रीज. एडजस्टिंग एंट्री यू नो इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट. पिछले लेक्चर्स में भी हम इसकी बात कर चुके हैं. इसी साल की क्लोजिंग एंट्री भी बना दें. इनकम समरी डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट. नेक्स्ट ईयर वाली अमाउंट से हमने एडजस्टिंग एंट्री बनाई और फिर क्लोजिंग एंट्री बनाई. और तीसरे साल की भी हमने तीसरे साल वाले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से एडजस्टिंग एंट्री बनाई और क्लोजिंग एंट्री भी रिकॉर्ड की. सो दिस इज हाउ आर एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज विल बी रिकॉर्डेड फॉर 2018, 2019 एंड 2020. इसी कैलकुलेशन को अगर हम शेड्यूल फॉर्म में करें, जो कभी क्वेश्चन में शेड्यूल फॉर्म में प्रेजेंटेशन मांगते हैं, तो कंप्यूटेशन के कॉलम में हम अपनी कंप्यूटेशंस देंगे. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो हमें बैलेंस शीट में दिखाना होता है वो आएगा, और बुक वैल्यू जो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके आती है वो हमारे पास इस कॉलम में आएगी. नाउ इफ़ वी हैव अ लुक ऑन द पार्शियल बैलेंस शीट ऑफ 3 ईयर्स. 2018 की बैलेंस शीट में व्हीकल की कॉस्ट दिखाएं. 2018 का जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है वो शो करें. यहाँ से हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लेंगे. इस कॉलम में अमाउंट कैसे आएगी? जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वही यहाँ आ गया.
अगले साल में ये पुराना डिप्रिसिएशन और इस ईयर का डिप्रिसिएशन ये दोनों प्लस करके यहाँ आ गए, और नेक्स्ट ईयर में फिर ये एक्यूमुलेटेड और अगले साल का डिप्रिसिएशन दोनों प्लस करके ये यहाँ आ गए। और इन एक्यूमुलेटेड को जब आप इसकी कॉस्ट में से माइनस करते जाएंगे तो आपके पास बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में शो हो रही है वो आती जाएगी। जब 2019 की पार्शियल बैलेंस शीट बनाएंगे हम, कॉस्ट में से अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन जो 2019 का है, जो हमारे पास यहाँ टेबल में नज़र आ रहा है, 2019 का जो अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन है वो हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, और उसको माइनस करके हमारे पास बुक वैल्यू इस पर्टिकुलर डेट को आ जाएगी। थर्ड ईयर 2020 की बैलेंस शीट देखें, व्हीकल की कॉस्ट वही रही, और अब हमें अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन वो दिखाना है जो थर्ड ईयर की हमारी बैलेंस शीट में हमारे शेड्यूल में नज़र आ रहा है। थर्ड ईयर 2020 में हमारा अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन 159,999 है। हम थर्ड ईयर की बैलेंस शीट में वो दिखाएंगे, और इसे माइनस करके जो अमाउंट आएगी वो हमारी है बुक वैल्यू। तो दिस इज हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग depreciation expense in sum of year digit method, and you will be recording its adjusting and closing entries, and you will be showing balance sheet partial for the 3 years of vehicle's life. Like the video, share it, subscribe the channel.